वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है. So just, applying that logic in our practical life, in our preparation for CSE 2024, that every single water droplet counts to make a ocean. ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हम यहाँ से करने जा रहे हैं, that we are trying to move ahead, in fact, one step closer to UPSC CSE 2024, because every day's efforts count. So this is the new initiative that Anjan Kalash IAS by me, Arpita Prakash, is bringing to you. What we are doing very crisply, I am going to explain you about the initiative. I just have one request. If you could please stay till the end of the video to understand the whole initiative, what it is all about, because the minutes that you are spending here, even if you choose not to follow the initiative, at least you can apply this in your self mode, preparation mode. Okay, so this is anyways going to be helpful to you, and if you feel that this is worthy enough, then you can of course carry on with the initiative. So just please spend couple of minutes with me in this video so that you understand what exactly are we talking about. Firstly, I will not give you any other background, any other information, any other introduction. Quickly coming to the questions that I am supposed to answer in the introductory video. So firstly, why this initiative? देखो एक चीज़ बेसिकली ध्यान से समझो. दिस वीडियो इज कमिंग टू यू 14 मार्च को रात में. ठीक है, तो 14 मार्च का टाइम तो ऐसे भी गया. सो यू हैव हाफ ऑफ मार्च जिसमें एंड में फेस्टिवल और ये सब भी हैं. देन यू हैव फुल ऑफ अप्रैल. ठीक है, मे को आप हाफ ही मान लो फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट लास्ट 7 to 10 days यू विल नॉट बी इन दैट जोन. यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज PYQs एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो आप ये दोनों अगर मिला के देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली हम 60 days के ही टारगेट के हिसाब से बात करें. 50 to 60 days अब जो कि एक्चुअली प्रोडक्टिव स्टडी होने वाली है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रिमेनिंग डेज यू जस्ट हैव गॉट लिमिटेड डेज इन हैंड. एंड नाउ इट्स द टाइम जहाँ पर लोग पैनिक करने लग जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी स्टार्ट्स टू बिल्ड अप एंड मोनोटनी आपको होने लग जाती है, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. इस टाइम पे आप कुछ भी न्यू नहीं पढ़ पाते हो. चलो थोड़ा बहुत वन और द अदर इफ यू आर जस्ट डूइंग न्यू, दैट इज ओके, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो रिपीटिंग देम इज वेरी मोनोटनस. Also, our brain has very limited capacity to memorize, recall and reproduce. Limited in the sense मैं कोई scientific background के sense में नहीं बात कर रही हूँ कि brain की unlimited capacity और ऐसा. No, the point I'm making is under these situations, ठीक है, उस टाइम पे हमारी एक limited capacity होती है. Moreover, we have to do multiple subjects. So we need to how to keep switching from subject to subjects. We have so many pending tasks. I'm very sure कोई भी अभी आप में से ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि that you are 100% confident of clearing the prelims. ये तो नहीं होगा. ठीक है. And then you have to understand that it is the practice and practice and practice and practice which ensures perfection in the end. If not total perfection, at least near perfection. ठीक है. So that is the reason of bringing this initiative. Now what is this initiative? करने क्या वाले हैं इसमें? Firstly, this is going to be just a smaller contribution towards realizing your dreams of clearing prelims. मैं और किसी स्टेज का कोई गारंटी या कुछ भी नहीं ले रही हूँ. इनफैक्ट prelims के लिए भी आई एम नॉट गारंटीइंग एनीथिंग. इट इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन सो दैट एटलीस्ट यू कैन मूव वन स्टेप क्लोजर, जैसा हम बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स योर ड्रीम. ठीक है, अब हम इसमें करने क्या वाले हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वन स्टेप क्लोजर वाली चीज़, तो हम डेली मैंने लिखा, बट इट इज़ मोर अबाउट डेली और ऑल्टरनेट. वो हम देख लेंगे कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इन वीडियोस को कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन, बिकॉज यू कैन नॉट स्पेंड होल ऑफ योर टाइम ओनली ऑन द वीडियोज़, है ना. यूट्यूब से कोई फुल फ्लेज पढ़ाई कभी किसी की कितने भी अच्छे चैनल से भी नहीं होती है. हाँ, लेकिन दीज थिंग्स डेफिनेटली एड योर प्रेपरेशन. वो जो एक गैप होता है ना, उसको ब्रिज करने में ही आपको मदद करता है. वो जो एक्स्ट्रा एज होता है ना, वो आपको ये सब मिलता है. ठीक है, सो आई टेल यू द शेड्यूल एंड एवरीथिंग एज वी प्रोसीड, बट फॉर द टाइम बिंग वी विल बी डूइंग मिसलेनियस टॉपिक्स, जो कि स्पेशली फैक्ट्स होंगे. कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट होंगे, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. जस्ट स्टे विथ मी, प्लीज प्लीज स्टे विथ मी. सी, आई हैव दीज स्लाइड्स टू शेयर विथ यू. थोड़ा सा बस होल्ड ऑन कर लो, बहुत टाइम नहीं लगाने वाली हूँ. जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. उसको हम ना चंक्स में करेंगे, टुकड़ों में करेंगे. ठीक है, नाउ वेयर विल आई ब्रिंग दीज फैक्ट्स और मिसलेनियस टॉपिक्स फ्रॉम? क्या मैं रैंडम अपने मर्जी से लाऊंगी? एब्सोल्युटली नॉट. दिस इज द प्राइम टाइम, द रिमेनिंग 50 to 60 days, so it has to be like giving you the best possible content. So these pointers are going to come based on the questions and themes from the previous years. ठीक है, सिर्फ PYQ नहीं हम करेंगे, इसको समझो. हम PYQ नहीं करने वाले हैं जो कि हर जगह हो रहा है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड थीम्स को पकड़ने वाले हैं. कैसे? I'll just explain you. Now you see,
What do I mean by doing things in chunks and like exactly इसका पर्पस क्या है? As I said कि हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है टू मेमोराइज, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस. सो क्या होता है, यू गेट सो मेनी कंपाइलेशंस इन मार्केट, है ना, ऑफ एवरीथिंग. मैप्स का कंपाइलेशन, सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स का कंपाइलेशन, सारे एक्ट्स का कंपाइलेशन, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का कंपाइलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. कंपाइलेशन की देयर इज नो कमी इन द मार्केट, यू नो दैट, ठीक है. There is no lack of these documents. You get it everywhere. But the point is, are we, and we also feel very contented, very good after getting those compilations. आपके लैपटॉप में भी, मेरे लैपटॉप में भी, हम सबके डिवाइसेस में वो ऐसे PDFs भरे पड़े हैं. How many times do we open them? कितने बार हम एक्चुअली उसको खोल के यूज़ करते हैं? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एंड में वी जस्ट गिव आवरसेल्व्स दैट सेटिस्फैक्शन, दैट सूडो सेटिस्फैक्शन, दैट फॉल्स सेटिस्फैक्शन कि हमने सारे फैक्ट्स पढ़ लिए और हमको याद हो गए. होता क्या है प्रीलिम्स पेपर में, द रियलिटी आई एम टॉकिंग, यू वुड बी फेमिलियर इफ यू हैव डन योर स्टडीज प्रॉपरली, यू वुड बी फेमिलियर विथ मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जो उसमें नाम लिखा होगा ना कॉन्सेप्ट्स का या टॉपिक या थीम जो होगा, आपको पता होगा उसके बारे में, बट एग्जैक्ट प्रिसाइज फैक्ट और इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल. और वहां पे गलती होती है दैट 50-50 पे पहुंच के भी यू मार्क द आंसर रॉन्ग एंड हो जाता है नेगेटिव मार्किंग, ओवरऑल लेसर स्कोर. I hope if you are a serious aspirant, if you have given good number of mock test, if that's your first attempt, and if you are somebody who has multiple times appeared in exam, you would agree to what I'm telling. ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव है बेसिकली. अब जैसे मान लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सम प्रोमिनेंट थीम्स, दीज आर जस्ट सम थीम्स, ठीक है, तो एवरी लिस्ट हैज दैट एटसेट्रा इंक्लूडेड इन दैट. ये मैंने किसी उससे उठा करके कॉपी नहीं करा, ये रैंडम मैंने अपने मेमोरी से लिखी हैं चीज़ें. लाइक रिफॉर्म मूवमेंट्स, INC सेशंस, एक्ट्स, एजुकेशन रिलेटेड पॉइंट, प्रेस रिलेटेड पॉइंट, किसने क्या कब कौन सा न्यूज़पेपर आया, इंपॉर्टेंट ईयर्स, अब वो पूछते हैं, यूरोपियन कंपनी, पोर्टुगीज, डच, फ्रांस, ब्रिटेन एटसेट्रा, रेबेलियंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑथर्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और इन सब के कंपाइलेशन भर भर के मिलते हैं मार्केट में. सेम गोज फॉर पॉलिटी, शेड्यूल, आर्टिकल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, DPSP, कमिटीज़, चाहे कैबिनेट कमिटी और पार्लियामेंट्री कमिटी, देन डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सो एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मेनी फैक्ट्स आर देयर. एनवायरमेंट में ये तो हद ही हो जाती है. इसका मैप्स तो ऐसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है या बटता है या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड होता है एज इफ वी आर एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. अभी टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड रिसेंटली 80 इंक्रीज हुए हैं, आपको सब याद हो गए हैं क्या? इज इट पॉसिबल? आप पूरा नेशनल पार्क एक ही दिन में करने बैठ जाते हो, यू सिट एंड यू स्टार्ट डूइंग इट कि हम पूरा एक ही दिन मैप को सजा सवार लेंगे. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट यूल रिमेंबर देम? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स, कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशन, स्पीशीज, अरे सारी स्पीशीज एक बार कर लोगे, एक के भी फीचर याद नहीं रहने वाले हैं. देन ज्योग्राफी, ड्रेनेज, सारे रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें एंड में कुछ याद नहीं रहता है किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन कहाँ से निकलता है, किसका ग्लेशियर कौन सा पास में, एटसेट्रा. फिजिकल फीचर्स, पोर्ट्स, वेजिटेशन, रिसोर्सेज, एटसेट्रा. नाउ इट इंक्लूड्स एन नंबर ऑफ थिंग्स, मिनरल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है. एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री तो भाई रुला देती है, रूलर्स, डायनेस्टीज, टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी, सेंट, सूफीज, बुद्धिज्म, जैनिज्म के लिटरेचर, एटसेट्रा. It's not possible that you just do the compilation and you're going to, and important terms in history, है ना, वो भी पूछा जाता है, उसको मैं ऐड कर देती हूँ. टर्म्स, ठीक है, याद ही नहीं रह सकता है भाई, आप उस लिस्ट को करते रह जाओ. टेक इट फ्रॉम मी एंड यू नो दिस डीप विद इन योर हार्ट, यू नो दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग. तो सेम गोज फॉर लेट्स से आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर एटसेट्रा. साइंस एंड टेक में इतनी सारी वैक्सीन के टाइप, डिजीजेज, सबका याद है आपको सिम्टम्स और सब, मिसाइल्स, लॉन्च व्हीकल्स एटसेट्रा. इकोनॉमी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं इंक्लूड करा बिकॉज दैट इज प्राइमरीली कंसेप्चुअल, उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट ऐसे रटने का होता नहीं है. सो विल टॉक अबाउट इकोनॉमी सम अदर टाइम, बट अभी तो इतने बेसिक सब्जेक्ट्स भी तो संभालने हैं ना. तो अब इसी चीज़ों के लिए मैं ये इनिशिएटिव लेकर आई हूँ. सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी. ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं काम की बात पे. भाई देखो, GS में यू गेट 100 क्वेश्चन, ठीक है. द क्वेश्चन आर ऑफ मिसलेनियस नेचर. मिसलेनियस मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड क्विकली दे स्विच. एक क्वेश्चन एनवायरमेंट, एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे मिक्स होता है. यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट. फर्स्टली वो ट्रेनिंग लास्ट के 10 दिन या 15 दिन में नहीं आ सकती. दैट रिक्वायर्स गुड इनफ टाइम, ठीक है, और अब जो हाथ में उसमें ही करना है. फर्स्टली यू आर नॉट रीडिंग दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ रिविजन. लेकिन रिविजन का टेक्निक इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू रॉन्ग, ठीक है.
Plus, there are certain fresh topics that keep coming from number of sources, be it current affairs, etc., etc. Now, for all of those things, you need to understand that things need to be retained for long. Longer time in your memory, they should stay. Also, these things will help us in recalling. आखिर exam hall में when you are attempting the paper, if you are not able to recall things, then it doesn't make sense. सो एग्जाम हॉल में लेस प्रेशर फील हो, उसके लिए ये बैकग्राउंड की ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है. ठीक है. देन चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जाम जो आजकल हो रहा है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन द एलिमिनेशन मेथड. इसको तो भूल ही जाओ. इफ दे यूज दिस टेक्निक, गुड इनफ, बट इफ दे डोंट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू पैनिक डिस्पाइट गेटिंग एनी सरप्राइजेस. है ना. फैक्ट्स भी पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी पूछ रहे हैं. नाउ दे आर चेंजिंग द पैटर्न ऑल्सो, ओनली 1 ओनली 2, या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला ऑप्शन. ठीक है. बहुत तरह के वो मल्टीपल नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं. नेक्स्ट ईयर कुछ और भी आ सकता है. नेक्स्ट ईयर मतलब इसी ईयर. So you have to focus now not only on reading the facts and feeling that you have done enough, but rather than recalling the read facts. जो आपने पढ़ लिए हैं उसको recall अब करना ज़रूरी है. And that is what I actually did in that 30 days series also. Firstly, thank you for the successful completion of that. Hope it has helped and hope it helps to the ones who would be seeing it later. Playlist list आपको description में है, but उस पूरे exercise में हमने यही करा था. हम recall कर रहे थे, हम कोई बने बनाए MCQ नहीं solve कर रहे थे. ठीक है. सो यू हैव टू रिड्यूस दैट पैनिक इन द एग्जाम हॉल एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. अब क्या है, बहुत सारे अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं जिसका कोई सोर्स कभी ट्रेस ही नहीं हो पाता. यू नो दिस. ठीक है. अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को या तो यू विल करेक्ट बाय लक और एनी वन विल करेक्ट दिस क्वेश्चंस बाय लक, और यू विल हैव टू लीव, और ऑफकोर्स इफ यू डू रॉन्ग देन नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. बट यू कैन नॉट हेल्प मच अबाउट दीज अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, एंड नॉट ओनली यू, एनी वन कैन नॉट हेल्प. सो विदाउट, और रादर देन रनिंग आफ्टर दीज क्वेश्चन जिसका कुछ अता पता नहीं है, you should focus on not making any mistakes regarding the things which are under control. You have to ensure that whatever you have studied, वहाँ पे आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो. ठीक है. So what can be the best source of doing that? PYQ से derive करके themes. तो अब हम करने क्या वाले हैं. ठीक है. ये तो 30 डेज का मैंने आपको समझा दिया. अब ये रहेगा कल के लिए आपका एक स्लाइड, जो फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगी. उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डे फर्स्ट रहेगा, मान लो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट वट लिस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू, बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव थीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल. है ना. हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट की तरफ जाएंगे, सो दैट लिस्ट आई फिगर आउट. बट लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल. लेट्स से देयर आर सो मेनी INC सेशंस, उनके हमें बहुत सारे डिटेल्स याद रखने होते हैं. नॉट टू डू ऑल द सेशंस एट वंस इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट विल डू, विल डिवाइड लेट्स से इट इनटू चंक्स. हमने मान लो 1885 से 1905 के सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशंस एक दिन में करे. देन 1905 ऑनवर्ड्स मान लो 25 तक आगे करते हैं, फिर 25 से 47 तक करते हैं. सो 3 पार्ट्स में वी कैन डू. लेट्स से देयर आर पॉलिटिकल एक्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स दैट यू डू. सो एक बार में ओनली 3 to 4 एक्ट्स वी कैन डू. ऑन वन डे ओनली 3 to 4 नेशनल पार्क्स वी कैन डू, और 4 to 5 वेटलैंड्स वी कैन डू. चंक्स में वी कैन डिवाइड. दिस इज वॉट आई मेंट. नाउ ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो में आपको खाली 5 मिनट का वो हिस्ट्री का या पॉलिटी का एक्ट मिलेगा. नो, इट विल बी अगेन मिसलेनियस. So let's say on day 1, if I choose, let's say 3 to 4 subjects like modern Indian history, polity, environment, science, whatever if I choose, तो इसके 2-3 ऐसे टॉपिक्स, इसके 2-3, इसके 2-3, इसके 2-3. ठीक है. ऐसे करके हम छोटे छोटे फैक्ट्स को डेली याद करेंगे. इसको याद करना है. यू हैव टू रिमेंबर. डोंट रन आफ्टर द कंपाइलेशंस, आई रिपीट. तो क्या हो जाएगा, या फिर मान लो कोई जैसे एब्रीविएशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एब्रीविएशंस याद करने होते हैं कि उनके मेंबर कौन कौन से हैं. तो हम ऐसे निमोनिक्स बनाते हैं, नॉट एब्रीविएशन, बेसिकली निमोनिक्स बनाते हैं. एंड यू सिट इन द एंड एंड यू फील दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. आपको लग सकता है कि आपने करा हुआ, बट याद होता नहीं है. सो आई होप आई मेड सेंस. अगर आपको एग्जैक्टली देखना है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दिस इज गोइंग टू बी, अभी देखो हार्डली हमने कुछ 15-16 मिनट स्पेंड करे हैं, तो ये कोई इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि आप सुन नहीं सकते थे. अब कल हम डे 1 पे जब अपना फर्स्ट वीडियो लाएंगे, जो फर्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा, दैट यू वुड बी सीइंग व्हाट क्वालिटी इट इज. गिव टाइम एटलीस्ट टू द फर्स्ट वीडियो, प्लीज जज मी ओनली आफ्टर दैट, एंड देन यू रियलाइज एंड देन यू फील इफ यू आर विलिंग टू गो अहेड विद दिस एक्सरसाइज,
क्योंकि मैं आपको कोई भी अपने मन से नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रिपीटेड थीम्स ही दूंगी जो पूछे गए हैं, ठीक है। एंड वील रिमेंबर दोज फैक्ट्स हर दिन थोड़े 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 थोड़े, तो आपका वो काम क्या है, होते चला जाएगा। सो नीदर दिस इज सब्जेक्ट वाइज नॉर दिस इज ईयर वाइज, दिस इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स बिकॉज वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन अकॉर्डिंगली एज आई सेड, ठीक है। नाउ आई टेक not take much of your time, so I'll see you guys in the next video. The first video में हम इस चीज़ को डिटेल में करेंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसी तरीके से अभी फॉर द टाइम बीइंग द प्लान दैट आई हैव इज दैट आई जस्ट डू इट फॉर मार्च बिकॉज आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस। आई वुड प्रेफर टू डू इट ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो तो बनेगा बिकॉज सो मेनी सब्जेक्ट्स के साथ, और हम सारा पढ़ेंगे, हम क्लास में बैठ के उसको पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्स खोजेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन आंसर्स को याद करेंगे, ये सब क्लास में ही करेंगे, क्लास मतलब वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। सो आई ऑल्सो हैव टू डू द रिसर्च। तो फॉर मार्च आई ब्रिंग कुछ जो भी 7, 8, 9, 10 जितने भी वीडियोस बन पाते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स एंड बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम माई एंड एज वेल, देन विल डिसाइड इट फर्दर फॉर अप्रैल एंड कमिंग टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लिमिटेड टाइम आपके हाथ में है तो उसका बेस्ट यूज़ हो सके, एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। सो आई कीप इन्फॉर्मिंग यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बाई दिस। आप 30 डेज सीरीज जो अभी मैंने आपको दिखाया, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आपने नहीं चेक करा इसको कर लो, बिकॉज ये आपको बहुत हैंडी होने वाला है। So thank you so much guys again for giving your precious time at this moment. Now I'll meet you in the next video with the first session and then you give me your feedback, okay? Chalo, bye bye, take care, have a great time ahead and all the very best for your preparation.